Good evening, guys. Today is our day 9, and we are going to start our journey with CSS. So, let's quickly go through all the topics which we are going to cover up today. So, these are the topics which we are going to learn for today's session. The first one is margins, then lists, then paddings, cursors, outlines, and dimensions. So, we are going to learn how to use CSS for all these features. So let's quickly jump into the margins part. In margins, you get five properties which you can use for setting up margins for any element or any tag in HTML. It might be a block of elements or a single element, doesn't matter. Using these five features, you are going to learn each and everything. If my screen is visible, just confirm me once, please. Is it visible? So the first thing is the margin, in which you can put all these values like margin bottom, margin top, margin left, margin right. All four values you can incorporate in single property. And for this purpose property, you will be setting up values using the measurements which I have like shown you in the previous sessions. So it might be pixel, it might be percentage, it might be like vertical height, it might be em, it might be rem. So all these values you can put in the values part. In similar manner, if you want margin from bottom, then you will be using properties margin bottom. If you want margin from top, then you will be using margin top. If you want margins from left side, then you will be using margin left. If you want margin from right side, then you will be using margin right. So let's quickly uh, observe all the changes, like how all these things work. So for that, like first quickly create a new folder for day 9 and create a new file index.html. All right, so we are going to use inline CSS from today, like for the next 3 days, so that you can observe all these things in a single page. I have already shown you like you can use external CSS as well. So for your better understanding, like I am going to use internal CSS for now. How to use external CSS, all these things you know very well. So you can use either internal or external CSS for your practices. But in projects, make sure you always use external CSS. Do not go out for internal CSS, that is not practicable. All right, so we are going to start with like the margins. So quickly create index.html and then jump out for like features such as like you will be creating up margins. So like quickly create HTML boilerplate and put the title full stack developer. All right, so we have created a index file, like HTML file, where we have just created like the title, a simple HTML page. Then click on open in browser and this will be your output. So now it's blank right now. So I'm going to show you how you can use like the margin left property first. Then we will be jumping out for margin right, margin top, margin like bottom. So for margin left, I am quickly creating a paragraph. This is a paragraph. All right, so in this particular section, like if I want margin from left side, so I will be using style and then using margin left property. I can set margin from the left side. If I want a margin of 50 px from the like left side, then I will be writing in this manner margin left and the value should be 50 px. Now come to the browser and refresh the page. Now you can see like it has taken a margin of 50 px from left. What will happen if I remove this particular property? Then you will see that the text is starting from like the beginning, rather than like from keeping a margin distance of 50 px from the left side. See, without margin
the text is starting from the very beginning, and if you are putting up margin left, then only this particular text starts with a left margin of 50 px. Okay, now for like demonstrating like margin right, I would like create a text, and I will set the text to float to right so that I can show you the margin from the right side. So for margin right, if I have created paragraph, this is a paragraph. Okay, so if I will just write in similar manner a style margin right 50 px, then you will not observe any changes, because in right side there are a lot of empty area, or you can say white space. So you will be not be able to like observe the changes, like this text has started from the beginning and here is all empty space. All right, so margin right is working or not, this thing will not be visible. So if I set this text to right, if I am setting this text alignment to right, then only you will be able to observe the like margin from the right side. Now if I am setting the text align to right, then all this text should be starting from the like right side without any space, and for now like we have kept a margin of 50 px, that's why you are seeing a space from the right side, and this particular width is 50 px. If I am removing the margin of 50 px from the right, then you will be observing just the text is starting from like the very beginning of the right side. See, so if you are specifying a margin of 50 px from right, then only it like takes a distance of 50 px from the right side part, and the text is starting from that particular area. Is it clear for all? If you have any confusion, you can ask right now. कोई कंफ्यूजन है किसी को? लाइक मार्जिन कैसे सेट करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए? क्लियर है? सी राइट मार्जिन में क्या है ना कि आपको जब इनिशियल में विदाउट टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट के आप रखोगे राइट लाइक तो ये क्या होगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे चेंजेस, ठीक है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद ऑलरेडी ये वाइट स्पेस है, तो लाइक आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि राइट मार्जिन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा कि अलाइनमेंट का टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड पे जब अलाइनमेंट शिफ्ट हो गया तो ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, फ्रॉम लाइक द लास्ट इंड से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पर से स्टार्ट होना चाहिए था, बट जैसे ही हमने मार्जिन राइट सेट करा तो इसने क्या करा, राइट साइड में मार्जिन डाला 50 px का, उसके बाद टेक्स्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट मार्जिन यूज करते हो। अब उसी तरीके से दो और मार्जिन हैं, वो है टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। सो टॉप मार्जिन के लिए क्या है कहानी कि जब आप मार्जिन टॉप सेट करोगे तो ये ऊपर से आपको मार्जिन देगा, ठीक है। सो पहले ऐसे ही एक पैराग्राफ लिखते हैं एंड देन मार्जिन अटैच करके देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टाइल मार्जिन टॉप जो है अभी फिलहाल सेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसका वैल्यू नहीं डाला, जस्ट एक पैराग्राफ पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद वैल्यू पास करेंगे और देखेंगे कि पैराग्राफ में मार्जिन टॉप अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। मार्जिन टॉप का लाइक मेन गोल क्या होता है कि आपको ऊपर वाले टेक्स्ट से मार्जिन दिलाएगा। तो अभी आप डिस्टेंस देख लो, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट तो राइट साइड पर शिफ्टेड, बट फिर भी ये दोनों टेक्स्ट के बीच का डिफरेंस देखो, ऊपर वाला और इसके बीच का डिस्टेंस। आप जैसे ही इसमें मार्जिन ऐड करोगे ना, टॉप का वैल्यू यहाँ पे हमने डाला 50 px, अब क्या देखोगे कि जो डिस्टेंस है दोनों टेक्स्ट का वो बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया, अभी ये डिस्टेंस बढ़ गया, बीच में और एक्स्ट्रा स्पेस आ गया 50 px का। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो मार्जिन टॉप। अब आती बारी मार्जिन बॉटम का। तो मार्जिन बॉटम आपको ऑब्जर्व हो, उसके लिए हमें दो टेक्स्ट के लाइंस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नीचे वाले पार्ट पे मार्जिन हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे ऑलरेडी व्हाइट स्पेस होता है, जहां तक आपका टेक्स्ट आप डालोगे वहीं तक तो आपका वेब पेज है, और नीचे ब्लैंक स्पेस है, तो लाइक आप नहीं जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ आपका जो मार्जिन था वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ है
अब क्या करेंगे कि अगर मार्जिन हम सेट कर रहे हैं इसमें स्टाइल, ठीक है, अभी सेट नहीं करते मार्जिन। अब देखो दोनों टेक्स्ट जो हमने बनाया अभी दोनों लाइन, उसके बीच में जो डिफरेंस आप ऑब्जर्व करना, ये तीनों लाइंस के बीच में देखो डिफरेंस इक्वल है, बट जैसे ही मार्जिन बॉटम मैं इस पर्टिकुलर लाइन के लिए सेट करूंगा जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो क्या होगा ना कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का और ये पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ये दोनों टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्जिन बॉटम सेट करते हैं। सो हमने सेट करा मार्जिन बॉटम, ठीक है, 50 px। अब हम डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं दोनों के बीच का, ठीक है, रिफ्रेश कर रहे हैं। देखो रिफ्रेश होने के साथ आप देखो ये दोनों टेक्स्ट का मार्जिन उतना ही है, बट विद इन दिस टू टेक्स्ट मार्जिन बढ़ गया। तो किसका मार्जिन आया, तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है दिस इज पैराग्राफ, उसके नीचे बॉटम पे मार्जिन सेट हुआ है। ठीक है, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी हुआ आपका मार्जिन लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप का। अब एक प्रॉपर्टी है मार्जिन करके, जिसमें क्या होता है कि आपको चारों साइड से आप मार्जिन उसका एक साथ सेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप मार्जिन में जो सेट करते हो वैल्यूज, तो सबसे पहले जो वैल्यू आप डालते हो फर्स्ट वैल्यू, इसमें 4 वैल्यू आप पास कर सकते हो या तो 2। ठीक है, तो कैसे कैसे आप वैल्यू पास कर सकते हो वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे कमेंट में डाल दे रहा हूं। मार्जिन प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले जो वैल्यू डालते हो वो डालते हो टॉप के लिए, ठीक है, फिर डालते हो आप क्लॉक वाइज में बढ़ते हो आगे। ठीक है, तो घड़ी का कांटा जैसे चलता है उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो टॉप के बाद क्या आएगा, राइट, सो राइट का वैल्यू डालोगे। राइट के बाद क्या आएगा, बॉटम, तो आप बॉटम का वैल्यू डालोगे। इसके बाद क्या आएगा, लेफ्ट, तो आप लेफ्ट का वैल्यू डालोगे। ठीक है, टॉप और बॉटम में देखो, टॉप का कहानी ये है कि ऊपर से आपको मार्जिन मिलेगा, बॉटम का कहानी ये है कि नीचे से आपको मार्जिन देगा। ये सिंपल सा चीज है, इसमें क्या कंफ्यूजिंग है वो आप बताओ। जैसे आपका लेफ्ट और राइट से मार्जिन मिला उसी वे में आपका टॉप और बॉटम में मार्जिन है। इसमें डिफरेंस लाइक क्या कंफ्यूजिंग था वो बताओ। लाइक देखो स्पेस जो आप, जैसे आप नॉर्मली असेंबली जब आप किसी भी जब स्कूल में आप होगे तो आपके असेंबली लगते होंगे, राइट। तो असेंबली में क्या होता था, आप अपने आगे वाले से एक हाथ के डिस्टेंस पे खड़े होते थे, राइट। तो आगे से जो आप डिस्टेंस लेते थे वो क्या होता था, आपका आगे से अगर मैं मानूं तो वो टॉप मार्जिन हो गया। पीछे वाला जो लेता था वो लाइक पीछे का मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन बॉटम कंसिडर हो सकता है। ओके, तो नेटवर्क इशू में लाइक आप इंटरप्ट इस तरीके से मत करो बीच में सेशन, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, हमारा टाइम स्पेंड लाइक बढ़ेगा चीज़ों का। तो बेहतर है कि लाइक ये सारी चीज़ें आप लास्ट में क्लियर आउट कर लो। ठीक है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलते हैं तो आप उस जगह पे जाके वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज में पास करोगे वैल्यूज। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप मार्जिन में 2 वैल्यू ही सिर्फ पास करो। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू पास करोगे ये टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो वैल्यू आप डालोगे वो लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 वे में आप पास कर सकते हो। तो पहले मैं 4 वाला पास करके दिखाता हूं कि टॉप में मैं डाल रहा हूं 25 px, ठीक है, सॉरी 50 px ही लेते हैं, और बाकी सबको 0 0 0 रख रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिफरेंस लाइक ये डिस्टेंस जो मार्जिन हमने सेट करा वो सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी क्या कहानी है कि ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है ये डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी मार्जिन टॉप का वैल्यू सिर्फ डाला है। ठीक है, देखो ये हमने करा, अब दोनों का मार्जिन इक्वल था तो ये लाइक डिस्टेंस जो है वो आपका उतना चेंजेस नहीं दिखेगा। देखो आपको मैं अगर इसके लेआउट्स दिखाऊं तो ये देखो, इसका क्या कहानी, इसने मार्जिन टॉप, इसमें मार्जिन टॉप 50 px है, मार्जिन बॉटम है। ठीक है, इसमें नीचे वाले में आओ, सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसका क्या है, मार्जिन टॉप अगर आप कंसीडर करो, जो ऑरेंज वाला एरिया दिख रहा है वो 50 px का है ना, है या नहीं है, राइट। तो ये दोनों का एरिया अपने आप पे लाइक ये टॉप का मार्जिन हो गया, इसका मार्जिन बॉटम पे था और इसका मार्जिन टॉप पे है, और दोनों का जो एरिया है वो सेम एरिया है, इसलिए आपको डबल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, वो ओवरराइड कर गया एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आपका 50 px टॉप पे मार्जिन आया। ठीक है, अब चलो इसी तरीका से अब हम टॉप वाला मार्जिन को 0 करते हैं, अब लेफ्ट वाला सॉरी राइट वाला वैल्यू में 50 px करते हैं। अब राइट साइड में पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो हमें मे बी
चेंजेस नहीं दिखे तो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट अलाइन जो है वो राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि राइट साइड अगर ये चिपक रहा है और राइट साइड से मार्जिन रहेगा तो हमें चेंजेस दिख जाएंगे। राइट, तो अभी देखते हैं राइट साइड पे जाएगा तो देखो ये पूरा राइट में नहीं चिपकेगा। ठीक है, देखो ये पूरा राइट में चिपका नहीं ना, राइट साइड से सिर्फ मार्जिन आया। ठीक है, तो सेकंड वाला वैल्यू आपका राइट साइड के लिए होता है। अब जो नीचे वाला वैल्यू है वो लेफ्ट के लिए होता है, बट लेफ्ट पे आप तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब नीचे कोई एक पैराग्राफ रहेगा। राइट, तो हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने क्रिएट करा। अब देखते हैं लाइक चेंज करते हैं वैल्यू को और बॉटम पे सेट करते हैं। ये 0 कर दे रहा हूं। अब कहानी है कि बॉटम को मैं सेट कर रहा हूं 50 px। अब जो डिस्टेंस आना चाहिए टेक्स्ट लाइन राइट में हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब नीड नहीं रही। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज तो ये कि लेफ्ट साइड पूरा आ जाएगा। अब देखो ये दोनों टेक्स्ट का बीच का डिस्टेंस बढ़ा हुआ है। राइट, तो ये बॉटम सेट हुआ किसका, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट का। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम हमारा काम कर गया सही से। चलो अब इसको कर देते हैं 0। अब लेफ्ट साइड वाले को सेट करते हैं 50 px। अब देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड से मार्जिन लेता है या नहीं लेता है। तो जो सेलेक्टेड है वो देखना है, वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से मार्जिन ले लिया और बॉटम वाला हमने हटा दिया था मार्जिन, तो ये हट गया। अब इस पे अब चारों प्रॉपर्टीज आप सेट कर दो। अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी डालोगे ये इस तरीके से लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। अब आती बारी कि जिसमें दो वैल्यू, तो क्या होगा दो वैल्यू में मैं दो वैल्यू अगर पास करता हूं मार्जिन में कि यहाँ पे 50 px और ये 0। ठीक है, अब क्या नोटिस करोगे आप कि ये टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन लिया है और लेफ्ट और राइट में नहीं रहेगा। तो देखो स्टार्ट हुआ बट ये टॉप पे मार्जिन लिया, बॉटम पे भी मार्जिन लिया। ठीक है, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो देखना ये टॉप और बॉटम दोनों से सिकुड़ जाएगा। लाइक वो स्पेस नहीं रहेगा, व्हाइट स्पेस हट जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा वो व्हाइट स्पेस। देखो जैसे रिफ्रेश करा देखो ये बॉटम पे सट गया, बॉटम पे पूरा चिपक गया और इससे भी चिपक गया। टॉप और बॉटम दोनों का जो मार्जिन था वो 0 हो गया। और तो ये आगे वाला जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम के लिए काम करता है। सिमिलरली ये 50 px आपका लेफ्ट और राइट के लिए काम करता है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड से 50 px आपको मिल गया, राइट साइड से भी आपको 50 px मिल गया। ठीक है, तो ये है कहानी आपका लेफ्ट और राइट वाला चीज के लिए। ठीक है, अब एक और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है मार्जिन में कि आप एक ही वैल्यू पास करो। ठीक है, और वो एक वैल्यू कैसे पास करोगे वो बताता हूं। एक वैल्यू जब आप पास करोगे तो ये चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सब पे। सपोज हमने यहाँ पे 50 px करके डाला। अब देखना जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट आएगा नीचे में वो नीचे बॉटम से भी मार्जिन लेके रहेगा। ये देखो ये बॉटम से मार्जिन नहीं है ना। अब जो नया टेक्स्ट आएगा वो आप ऑब्जर्व करो, ये नीचे से भी इसका मार्जिन है, राइट, लेफ्ट से भी मार्जिन है, राइट से भी मार्जिन है, राइट साइड में व्हाइट एरिया इसलिए आपको नहीं दिख रहा, और टॉप से भी मार्जिन है। तब जब आप एक वैल्यू पास करते हो मार्जिन में तो वो चारों एरिया साइड पे आपका अप्लाई हो जाता है। अगर आप दो वैल्यू पास करोगे तो लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम वाला कॉन्फ़िगरेशन जो बताया उस पर काम करेगा। ठीक है, तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ये था हमारा पूरा मार्जिन का कहानी कि आप किस तरीके से मार्जिन पूरा सेट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करते हैं, वो है हमारा लिस्ट का। ठीक है, तो लिस्ट में ये 5 प्रॉपर्टी आपको मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो सीएसएस के लिए। पहला है लिस्ट स्टाइल टाइप, जो आपको अलाउ करेगा कि आप जो मार्कर होता है ना, जो बुलेट लिस्ट टाइप में दिखता है या फिर 1 2 3 4 दिखता है, ये नंबरिंग्स या जो डॉट दिखता है आपको, स्क्वायर दिखता है, वो किस तरीके का होगा, वो सेटिंग्स, वो चीजें आप चेंज कर सकते हो लिस्ट स्टाइल टाइप से सीएसएस के थ्रू। फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये कहाँ पे होगा। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, क्या इसका कंडीशन होगा वो आप सेट कर सकते हो इससे। लिस्ट स्टाइल इमेज, अगर आपकी मर्जी है कि कोई आप इमेज यूज करना चाहते हो, जैसे टिक मार्क वाला है कि आप चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट पे टिक मार्क किया हुआ लिस्ट आप शो करो, तो उसके लिए आप अगर टिक मार्क का एक जीआईएफ या फिर पीएनजी इमेज यूज करते हो तो कैसे आप उस इमेज को यूज कर सकते हो बुलेट पॉइंट के जगह पे, वो चीज ये है। ठीक है,
उसके बाद है मार्कर ऑफसेट। मार्कर ऑफसेट से क्या होता है कि लाइक डिस्टेंस कितना होगा मार्कर के बीच में, दो मार्कर्स के बीच में, वो चीज ये बताएगा लिस्ट में। ठीक है, तो अभी हम लाइक स्टार्ट करते हैं वो चीज, एक एक करके कवर अप करते हैं लिस्ट वाला पार्ट। ठीक है, चलो ये आप लोग देख लिया है ना। चलिए अब लिस्ट का स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके और सारा स्टाइलिंग करते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि लाइक हम एक लिस्ट का प्रॉपर्टी बनाएंगे एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक लिस्ट बनाना होगा। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बना रहे हैं पहले। ठीक है, इसके बाद चार लिस्ट आइटम ले लेते हैं इसमें, li, दिस इज अ लिस्ट आइटम। ठीक है, ठीक है, फिर तीसरा है ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा, हमने लिस्ट आइटम्स रेडी कर लिए। ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंस देखने के दिखाऊं उसके पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूं सो दैट कि आगे आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाओ। देखो ये लिस्ट आइटम है, ये बाय डिफॉल्ट बुलेट लिस्ट के साथ है। अब जो है लिस्ट स्टाइल टाइप हम चेंज करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लिस्ट को लिया। अब हम चेंज कर रहे हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, अब लिस्ट स्टाइल टाइप में मेरी मर्जी है कि लाइक सर्कल यूज करूं। सर्कल में क्या होगा ना कि वो एम्प्टी रहेगा, ये तो ऑलरेडी बुलेट लिस्ट है ना, तो बुलेट्स पास करोगे तो बुलेट लिस्ट आएगा। सर्कल में क्या होगा, आउटलाइन सिर्फ रहेगा सर्कल वाला ये। तो सर्कल इस तरीके से पास कर सकते हो। आपकी मर्जी कि सर स्क्वायर रखें तो आप स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर करा, अब देखो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है कि सर इसका लाइक मैं डेसिमल में रखूं, या फिर लाइक जो ऑर्डर लिस्ट होगा उसमें आप डेसिमल, डेसिमल लीडिंग जीरो, तो ये इस तरीके के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शंस जो देखने हैं वो कहां से आप देखोगे वो मैं बता दे रहा हूं। तो आपको एक क्लासरूम में फाइल शेयर किया गया होगा फॉर लाइक ई पीडीएफ होगा वो सीएसएस से रिलेटेड। तो आप उसमें जाना इस टॉपिक पे, लिस्ट वाले टॉपिक पे, तो आपके इसके जितने भी ऑप्शन हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पहला है बुलेट जिसको डिस्क भी बोलते हैं, दूसरा है सर्कल, तीसरा है स्क्वायर। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप वहां से ऑप्शंस देख लेना और एक एक करके आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट से एक दो ट्राई करवा दे रहा हूं। ठीक है, अब इसी को ऑर्डर्ड लिस्ट में करने के लिए क्या करेंगे, यूएल को जस्ट हम ओएल में चेंज कर रहे हैं और फिर लिस्ट स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, तो ओएल करा तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा 1 2 3 4, और हमने जब एल आई पे सी एस एस डाल के रखा जिसके कारण ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इस पे हम सी एस एस जो अप्लाई करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डेसिमल पास करते हैं कि मेरी मर्जी है कि लाइक जीरो से स्टार्ट हो, 01 02 03 इस तरीके से करके। तो क्या करेंगे डेसिमल लीडिंग जीरो, तो क्या होगा आगे में जीरो लग जाएगा। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होता है, बट जैसे ही डेसिमल लीडिंग जीरो करेंगे तो 01 02 03 04 करके स्टार्ट होगा। अब मेरी मर्जी है कि लोअर केस में एबीसीडी हो, तो क्या करेंगे लोअर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू पास करेंगे, सेव कर किया, रिफ्रेश कर रहे हैं, अब देखो एबीसीडी में कन्वर्ट हो गया। अब मेरी मर्जी है कि इसको मैं कैपिटल एबीसीडी में रखूं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, आप इसको कर दो अपर अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसके हेल्प से आप लिस्ट स्टाइल के लाइक लिस्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो आप। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों का, बट फिर भी अगर है तो आप लाइक पूछ सकते हो।
ओके, ये है कोड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसी पे हम आपको सारे पोजीशन अप्लाई करके दिखाते हैं। अब मेरी मर्जी है कि लाइक तीन प्रॉपर्टी आपको मिलता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन में। वो है एक नन, दूसरा है आउटसाइड, तीसरा है इनसाइड। आउटसाइड डाला, आप नोटिस करना जहां अभी फिलहाल जहां पे 1 2 3 4 लिखा हुआ ABCD लिखा हुआ दिख रहा है वहीं पे रहेगा ये आउटसाइड में। जैसे ही आप इसमें इनसाइड पास करोगे ये थोड़ा अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ से लाइक ये थोड़ा अंदर की ओर खींचता है खुद को। देखो, थोड़ा सा पैडिंग लिया ना लेफ्ट साइड से, तो ये इनसाइड और आउटसाइड ये दो चीज आप यूज कर सकते हो। आउटसाइड सेट करोगे तो ये लेफ्ट साइड की ओर देखो चिपकेगा थोड़ा। ठीक है, आउटसाइड डाला, अब देखो ये राइट साइड की ओर थोड़ा सा, सॉरी लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा बढ़ेगा। अभी ये इस पोजीशन पे है। ठीक है, मैं सेलेक्टेड रखता हूं, रिफ्रेश किया हूं, देखो थोड़ा लेफ्ट की ओर बढ़ गया। तो इनसाइड और आउटसाइड इस तरीके से आप दो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब है कि आपकी मर्जी है कि लिस्ट स्टाइल में आप इमेज यूज करो। तो पहले मैं एक टिक मार्क का लाइक PNG इमेज डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं कि हाँ ये टिक मार्क काम करता है या नहीं करता है। सेव इमेज एज, और इसको सेव करना day9 के कोड में। कल हमने एक गलती करा था, लाइक मैंगो वाला सेव कर लिया था किसी और फोल्डर में और यहाँ पे ढूंढ रहे थे तो नहीं काम कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अब कहानी ये है, मेरी मर्जी है कि मैं लिस्ट स्टाइल में जो ये स्टाइल टाइप अल्फा वाला चीज है, अब मेरी मर्जी है कि मैं इसमें इमेज यूज करूं टिक मार्क वाला। तो क्या करेंगे उसके लिए, लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, और यहां पे आप URL पास कर सकते हो। उसका URL लिया हमने और यहां पे पास किया tic.png। ठीक है, अब क्या होगा, अभी हमारा ABCD दिख रहा था राइट, वो अब टिक मार्क में चेंज हो जाना चाहिए। अब देखो ये इमेज जो है इतना बड़ा बड़ा है, इसके कारण ये बड़ा सा लाइक ये स्पेस ले लिया। ठीक है, अब मैं उस इमेज को लाइक छोटा सा लिस्ट अगर मैं बना करके दिखाना चाहें तो वो चीज़ हम कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका जूम हटा के दिखाता हूँ कि कैसे ये लोड हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज बहुत बड़ा साइज का था इसलिए ये प्रॉब्लम आया आपको इस जगह पे। आपको इंस्पेक्ट करके दिखा रहे कि वो इमेज है कहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें आओगे तो आपको जो लिस्ट स्टाइल वाला चीज़ था, लाइक लिस्ट आइटम है ये, यहाँ पे हमने स्टाइलिंग करा कि लाइक ये इमेज जो है tic.png, ये लाइक यहाँ पे रीड नहीं कर पाया इसको, tic.png। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें डायरेक्टली URL पास करते हैं फ्रॉम द वेब ब्राउज़र। चलो इसका कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन पेस्ट इट हेयर। तो आप जो भी इमेज यहाँ से पास करोगे ना वो इमेज यहाँ पे आपको टिक मार्क में लोड होंगी। सॉरी, टिक मार्क मैं बोल रहा हूँ, बुलेट पॉइंट के जगह पे वो चीज़ लोड होता है। ठीक है, ओके, ये विजिबल क्यों नहीं है। यस, इमेज URL तो आ रहे हैं सही से, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है। ओके, हमने लिस्ट स्टाइल का कोई और प्रॉपर्टी सेट करा है कि आप पोजीशन आउटसाइड को हम हटा देते हैं, लाइक आउटसाइड नहीं रहे, कुछ भी नॉर्मल रखते हैं एंड देन। ठीक है, एक्चुअली इमेज विजिबल नहीं आ रहा है आपका, ये एरिया में तो आया। ठीक है, इमेज तो दिख रहा है, लाइक आया इमेज। अच्छा सॉरी, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और इसमें हम इमेज अप्लाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहले आप कन्वर्ट करो। ऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ आप नंबर यूज कर सकते हो ना कि लिस्ट, लिस्ट के इमेजेस, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में आप जो भी यूज करोगे ना वो न्यूमेरिकल रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो इमेजेस वाले में आपका कुछ कुछ ब्राउजर प्रॉब्लम करता है। सो लेट्स इट ओपन इन अनदर ब्राउजर। ऑल राइट, सो इमेज हमारा लोड हो रहा है बट ये में इमेज साइज आई गेस कुछ बड़ा है, इसके कारण ये विजिबिलिटी में नहीं आ रहा, जितना एरिया में होना चाहिए वो इमेज में ये चीज़ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यस, इसके स्टाइलिंग में तो आ रहे हैं।
ठीक है, इसका ना आपको लाइक मैं प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको इसके लाइव दिखाऊंगा, मेरे पास रिसोर्स हैं, वो रिसोर्स मैं आपको डाउनलोड कर लाइक यूज में दिखाऊंगा गिटहब से डाल करके। ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट आइटम में अगर आप नोटिस करो तो इसका इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया ना, क्योंकि जो इमेज यूज हो रहा है वो थोड़ा साइज बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसका देखो तो 320 208 पिक्सल का ये इमेज है, इसके कारण ये कुछ ज़्यादा बड़ा साइज में आ गया है। ठीक है, और वो विजिबिलिटी में इसी कारण बस नहीं आ पा रहा है। अगर हम इसको क्रॉप कर पाएंगे, छोटा कर पाएंगे, बहुत ही छोटा, ठीक है, तब जा करके ये आपको वहाँ पे यूज कर पाओ, क्योंकि आपको छोटा छोटा साइज चाहिए होता है ना, इसके लेकर के प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे, इमेज भी हम आपको यूज करके दिखाएंगे। फिर आपका मार्कर ऑफसेट प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है इससे क्या होता है ना कि लाइक आप ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 में यूज करोगे या कोई ब्राउजर में, ये चीज़ काम नहीं करेगा मार्कर ऑफसेट प्रॉपर्टी, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। इससे क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है ना दो मार्कर के बीच में, वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे दोनों दो जो लिस्ट है, लिस्ट आइटम जो आपको दिखते हैं, ठीक है, पहले तो लाइक इसका CSS आपको मैं कमेंट कर रहा हूँ सो दैट कि ये ज़्यादा स्पेस ना ले। चलिए, अब कहानी ये है कि मार्कर ऑफसेट जो हम सेट करते हैं, ठीक है, तो मार्कर ऑफसेट में लाइक कितना डिस्टेंस होगा दो दो बुलेट लिस्ट के बीच में या दो लिस्ट के बीच में, वो आप यहां से सेट करते हो। सपोज मैं इसको बोलता हूं कि 2em, मतलब जो अभी ऑलरेडी डिस्टेंस है उसका 2 गुना कर दो डिस्टेंस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको डिस्टेंस याद हो तो थोड़ा सा था, राइट, अभी ये नॉर्मल डिस्टेंस है। ठीक है, तो कुछ कुछ ब्राउजर में ये काम करेगा, कुछ कुछ में काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, मार्कर ऑफसेट जो है कुछ ब्राउजर में आपको काम में आएगा, कुछ ब्राउजर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं मार्कर ऑफसेट का कर रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर, ये लाइक आपको दिखे ड्रास्टिकली चेंजेस दिखाता हूँ, 20 पिक्सल में भी नहीं दिखेगा, सपोज 50 px रखो, लंबा चौड़ा चेंज रहेगा तो आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, दिस डज दिस ब्राउजर अलाउ, देन देखने दो हमें, मार्कर ऑफसेट नहीं, ये अलाउ नहीं कर रहा। जैसे ही कोई प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करता ना, तो आप जैसे ही चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये नॉट परमिसेबल है, ये ब्राउजर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम लोग चेक करते हैं कि लाइक वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैं इसमें से आपको दिखा रहा हूँ, नहीं ये भी सपोर्ट नहीं करता आपको, ये आई गेस डेप्रिसिएट किया गया। तो ये जो प्रॉपर्टी था बेसिकली क्या होता है कि आपको दो लिस्ट के बीच का जो मार्जिन होता है ना, उसको आपको ये दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये मार्जिन से आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, कस्टम आपको यूज करने होंगे। अब ये ऑलरेडी लिस्ट में से लाइक डेप्रिसिएटेड है, देखो यहाँ भी ये मार्क कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप सेट नहीं कर सकते, कोई नहीं। ठीक है, ये डेप्रिसिएट हुआ है, कोई बात नहीं। बट मार्कर ऑफसेट से क्या होता था, जो चीज़ आप यहाँ से लाइक मार्जिन सेट करोगे ना, जैसे यहाँ पे मैं डालूँ मार्जिन, और मार्जिन में मैंने डाला 1 रेम। ठीक है, तो 1 रेम डालने से जो इफेक्ट आता वही सेम इफेक्ट आपको मार्कर ऑफसेट से आता था। देखो ये क्या हुआ, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम सबसे ये मार्जिन 1 रेम का डाल दिया। तो यही सेम चीज आपको मार्कर ऑफसेट से होता। उससे क्या होता था कि दो पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, दो लिस्ट आइटम के बीच में, वो डिस्टेंस आपको ये चेंज करके देता था चारों साइड से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कंसिडर करके। तो ये था कहानी आपका लिस्ट का। इसमें एक चीज हमारा पेंडिंग है, याद रखिएगा, जब हम बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर लेंगे तब जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, आपका रेज्यूमे वाला पार्ट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें हम यूज करेंगे और वहां पे सारे टिक मार्क यूज करेंगे। जो जो स्किल्स आपको आ रहे होंगे ना, तो वो आप रिप्रेजेंट करोगे आपके अपने पोर्टफोलियो में, तो वहां पे हम टिक मार्क यूज करेंगे कि टिक मार्क हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम वहां पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे जंप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कहानी है, लिस्ट के बाद हमारा है पैडिंग। पहले पैडिंग को समझते हैं कि पैडिंग होता क्या है। मार्जिन और पैडिंग दोनों आपको सिमिलर टाइप का दिखेगा जब वो एक व्हाइट बोर्ड पे आप काम करोगे, बट डिफरेंस आप ये समझना कि मार्जिन जो है वो आपके एरिया के बाहर अप्लाई होता है। समझो बात को, मार्जिन आपके एरिया के बाहर अप्लाई होता है, बट पैडिंग आपके एरिया के अंदर अप्लाई होता है। ये चीज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट मी कनेक्ट माय डिवाइस, और उसके बाद आपको मैं ड्रॉ करके समझाता हूं मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस, क्योंकि ये समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप स्टाइलिंग कर पाओगे प्रॉपरली, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूजन में पड़ोगे और आप स्टाइलिंग गलत करोगे। तो पैडिंग बॉटम लेफ्ट टॉप राइट जैसे मार्जिन काम करता है, उसी तरीके से ये फीचर्स आपको मिलेंगे। तो 5 प्रॉपर्टी जैसे मार्जिन में थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है,
तो लाइक चलिए, तो हम क्या करते कि एक, ये नहीं चाहिए था अपने को, यस दिस वन। ऑल राइट, सो अब हम हमारा जो प्लान है वो है समझने का क्या, पैडिंग। तो पैडिंग समझने के लिए क्या है जो आप समझना, ये आपका पूरा एक वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज में आपने सपोज यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, कार्ड बना रहे हो, ठीक है। अब कार्ड बनाए हो आप, 4 कार्ड आप या जो भी जितने भी कार्ड्स आप बनाओ, ये जो ऊपर से डिस्टेंस है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आप बोलोगे मार्जिन, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है नीचे के अगर भी आप देते हो मार्जिन, तो ये इसको आप कंसिडर करोगे मार्जिन में, ठीक है। इस साइड से सपोज आप 2 कार्ड के बीच में डिस्टेंस देते हो, यहाँ पे भी एक और कार्ड है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कंसिडरेबल होगा मार्जिन में, ठीक है। बट इसके अंदर सपोज आपने एक इमेज डिस्प्ले करा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा और यहाँ पे आपने इमेज लगाया, यहाँ पे कार्ड का हेडिंग डाला, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला और यहाँ पे एक बटन डाला आपने, ठीक है। तो ये जो इमेज है, ये जो टेक्स्ट है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जो आप छोड़ोगे ना, इस साइड पे जो डिस्टेंस आपने छोड़ा यहाँ पे, ये इनर वाला जो होगा इसको आप कंसिडर करोगे एज पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग कैसे कंसिडर करोगे, तो इसके अंदर जो भी चीजें आप डिस्प्ले करोगे, सपोज आप चाहते हो कि इतना वाइट स्पेस एरिया छूटे, और ये जो बीच वाला एरिया इसमें आप लिख रहे हो, ये चारों साइड से जो बॉर्डर छूटेगा ना, उसको बोलोगे आप पैडिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक कार्ड को सिर्फ दिखाऊं ड्रॉ करके, ठीक है, आपने कार्ड बनाया, इस कार्ड में आप क्या किए कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, और इसके बीच में आप इस तरीके से कंटेंट रखोगे, बाकी आप लेफ्ट राइट चारों साइड से आप मार्जिन थोड़ा सा छोड़ रहे हो, तो ये मार्जिन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये जो अंदर की ओर आप एरिया छोड़ोगे इसको बोलोगे आप पैडिंग। ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये पूरा कंसिडर होगा पैडिंग। और कभी कभी क्या होता है कि आप ये अलग डिस्टेंस का रहता है, ये वाला गैप अलग डिस्टेंस का रहता है, ऊपर वाला गैप अलग डिस्टेंस का रहता है, बॉटम में गैप अलग डिस्टेंस का रहता है, लेफ्ट साइड में गैप अलग डिस्टेंस का रहता है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा पैडिंग राइट, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा पैडिंग बॉटम, ठीक है। और आपका जो ये वाला पार्ट है इसको आप बोलोगे पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसको आप बोलोगे पैडिंग टॉप, ठीक है। सिमिलर वे में पैडिंग में आप जो वैल्यूज पास करोगे वो याद रखना, ठीक है। पैडिंग प्रॉपर्टी में आप वैल्यू पास करोगे, फिर जैसे क्लॉक चलता है वैसे, क्लॉक कैसे स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है, तो एक राइट साइड की ओर जाता है, पैडिंग के टॉप के बाद राइट, राइट के बाद बॉटम 6 आता है, ठीक है, फिर लेफ्ट की ओर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैडिंग जब आप 4 वैल्यू पास करोगे। जब आप 2 वैल्यू पास करोगे तो क्या होगा, तो ये होगा पहले टॉप बॉटम, पहला जो वैल्यू होगा टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू होगा, कॉमा नहीं लगेगा याद रखना, ठीक है ना। मैं कॉमा हटा ही दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में लगा दोगे, फिर कहोगे सर आपने लगाया था, ठीक है। तो टॉप बॉटम और सेकेंड वाला वैल्यू जो होगा राइट और लेफ्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिंगल वैल्यू। अगर आप सिंगल वैल्यू डालोगे ये ऑल पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है कैसे काम करेगा पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अपन एक कार्ड बना लेते हैं और उस पर पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपको करके दिखाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, डिवीजन एक ले रहा हूँ, इसका मैं स्टाइलिंग खुद से CSS कर रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करना। डायमेंशन वाला चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ, डायमेंशन के बाद फिर हाँ बेहतर रहेगा, डायमेंशन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एंड देन आपको ये चीजें दिखाऊंगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है ना वो है आपका डायमेंशन पे, ठीक है, कि डायमेंशंस क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। तो डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो आपको मैं यहीं पे क्लियर आउट कर दे रहा हूं। चल,
तो मैं डायमेंशन आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो डायमेंशन में क्या होता है ना कि जब भी आप कोई एक एरिया क्रिएट करोगे, कोई एक एरिया, कोई भी एक सेक्शन बनाओगे, तो उसमें आप हाइट विड्थ सेट करोगे, राइट। तो उसके लिए आप यूज करोगे हाइट प्रॉपर्टी, विड्थ के लिए विड्थ प्रॉपर्टी। अब लाइन हाइट होता है क्या कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी आप लिखोगे तो दो लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो कंसीडर होता है लाइन हाइट में। मैक्सिमम हाइट होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया का मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मिनिमम हाइट से आप सेट करते हो कि मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ से सेट करोगे मैक्सिमम कितना विड्थ होना चाहिए, मिनिमम विड्थ से सेट करोगे मिनिमम कितना विड्थ होना चाहिए। अब ये चीज से हम आपको कार्ड बना के दिखाते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, और वो ये है कि लाइक जो डायमेंशन वाला चीज बताया, तो देखो डायमेंशन वाला काम कैसे करता है वो आप समझना। ये सपोज पूरा जो व्हाइट एरिया है ना वो हमारा वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे सपोज मैं बना रहा हूँ एक 3 कार्ड, तो 3 कार्ड बनाने के लिए ये जो विड्थ होगा ना, आप कुछ तो विड्थ सेट करोगे, ये एक विड्थ होगा, ठीक है। तो ये जो विड्थ होगा, ये जो विड्थ हम सेट करेंगे इस पर्टिकुलर कार्ड का, ठीक है, ये विड्थ डायमेंशन में कंसिडर होगा। ये जो इसका हाइट है कार्ड का, ये आपका हाइट हो जाएगा। बहुत बार आपका ऐसा केस आएगा कि आपका कंटेंट बड़ा हो सकता है, तो आप उस कंडीशन में सेट करोगे मिनिमम विड्थ कि लाइक कितना विड्थ कम से कम होना चाहिए, ठीक है, जहां पे कंटेंट आपका शॉर्ट पड़ेगा। मैक्सिमम विड्थ आप तब लगाओगे जब आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो आप चाहोगे कि शॉर्ट में निपटा दें, ठीक है, तो उस जगह पे मैक्सिमम विड्थ। ये कब होता है, जब आपके पास लाइक शॉर्ट कंटेंट होता है, तो आप डालते हो कि ठीक है कम से कम इतना विड्थ तो रखना ही रखना। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट सपोज यहीं पे खत्म हो गया, बट आपका नेक्स्ट जो कार्ड है वहां पे कंटेंट यहां तक आएगा, तब क्या करोगे, मिनिमम विड्थ तो एक्सेप्ट करोगे ना, नहीं तो क्या लगेगा एक कार्ड बड़ा एक कार्ड छोटा, तो वो लेआउट को बिगाड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये चीज लगाते हो। मैक्सिमम विड्थ कब लगाते हैं, जब हमारा कंटेंट लार्ज होता है, तो क्या करते हैं कि मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते हैं। तो क्या होगा कि उतना विड्थ तक जाएगा, उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग ऑप्शन आ जाता है कि आप स्क्रॉल करो, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ मिनिमम मैक्सिमम विड्थ के तरह मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, ये भी उसी तरीके से काम करेगा सिमिलर वे में। तो ये है कहानी। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कार्ड बनाते हैं, कार्ड के लिए हाइट विड्थ सेट करते हैं और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें दिखाते हैं। तो इसका सपोज क्लास हमने रखा HSR, और इस क्लास पे हम स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने बनाया एक स्टाइल टैग, चलो स्टाइल टैग हमने रेडी करा। स्टाइल टैग रेडी करने के बाद हम HSR क्लास सेलेक्टर से सेलेक्ट किए। अब हमने सेट करा कि इसका जो विड्थ होगा, ठीक है, सपोज हमने सेट करा, आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। मिनिमम विड्थ हमने सेट करा कि मिनिमम विड्थ इसका 50 लाइक 150 px होना चाहिए। अब क्या होगा ना कहानी, और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूं सो दैट कि आपको डिफरेंस दिखा पाऊं। बैकग्राउंड कलर हमने रेड सेट कर दिया। अब देखो ये जो इसमें टेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, तो कायदे से इसका विड्थ तो इस पर्टिकुलर टैग का कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं है, हाइट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब जैसे ही मैं इसमें मिनिमम हाइट सेट करता हूं उसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा कि मिनिमम हाइट ये 150 px हमने लिया। अब क्या कि कंटेंट हो या ना हो, आपने क्या बोला कि जगह उसको अलॉट करके रखना है, चीजें रहे ना रहे। देखो 150 px का हाइट का इसको अपने जगह दिया ही दिया, ठीक है, और मिनिमम विड्थ हमने सेट करा था 150 px। तो क्या हुआ कि कम से कम 150 रहेगा, और बड़ा HSR को पूरा विड्थ 100% अलॉट कर दिया। अगर आप यही चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देते मैक्सिमम विड्थ पे, तो आपको एक स्क्वायर मिल जाता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो विड्थ अलाउड था वो 150 और मिनिमम हाइट जो आप खोजे थे 150, दोनों मैच कर गया, देखो स्क्वायर बन गया, ठीक है। आप यही चीज लाइक रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते थे कि लाइक विड्थ और हाइट 150 px ही होगा, वो भी आप सेट कर सकते थे, उससे भी काम चल जाता। उसमें क्या होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट ओवरफ्लो करेगा वो ऊपर से चला जाएगा, स्क्रॉल फीचर में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से। अब मैं आपको इसी में लोरेम इप्सम का टेक्स्ट डाल के दिखाता हूं। हमने इस टेक्स्ट को कॉपी करा और इस पर्टिकुलर बॉक्स में डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलो विदाउट पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, वो टेक्स्ट रेंडर हो जाएगा, बट ये प्रैक्टिस नहीं है, पैराग्राफ में आप डालना ही डालना। देखो विड्थ और हाइट हमने डायरेक्टली डाला, तो जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा हुआ, देखो टेक्स्ट बाहर निकल गया बॉक्स के बाहर, राइट।
लेकिन यही चीज आप मिनिमम और मैक्सिमम सेट करोगे ना, तो वो चीज ओवरफ्लो करेगा, मतलब अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। स्क्रॉल का फीचर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसको कर दूं मैक्स विड्थ, ठीक है, तो मैक्स विड्थ में क्या हुआ कि ये इतना से ज्यादा तो पहले अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैं इसको मिनिमम विड्थ सेट करूंगा, पहला चीज ये विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि कम से कम 150 होना चाहिए, मैक्सिमम तो हमने बताया नहीं, राइट। तो देखो मैक्सिमम यहां तक चला गया। अगर इसके साथ साथ आप मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज कर देते हो कि ठीक है मिनिमम तो रखना 150, बट मैक्सिमम जो विड्थ आप जा सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउड है कि 250 px तक आप जा सकते हो। कंडीशन समझ रहे हो? हमने क्या बोला, 150 पिक्सल तो आपको मिनिमम रखना ही है, बट मैक्सिमम आप 250 पिक्सल तक जा सकते हो। देखो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डायमेंशन चेंजेस कर सकते हो। अब उसी तरीके से जब हाइट हमने 150 डाला था तो प्रॉब्लम हुआ। अब अगर मैं कर दूं मिनिमम हाइट 150 px, तो देखना नीचे की ओर पूरा हाइट बढ़ जाएगा टेक्स्ट का, मतलब रेड कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा नीचे टेक्स्ट तक, लोरेम एम सब तक। देखो ये बैकग्राउंड बढ़ गया, एरिया आपका बढ़ गया डायरेक्टली, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्वायर ही बना रहे और इसके अंदर ही टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो आप क्या करोगे, इसको कर दोगे मैक्स हाइट, और मैक्स हाइट जैसे ही आप सेट करोगे ये हो जाएगा आपका स्क्रॉलिंग फीचर में। देखो मैक्स हाइट सेट करा, और इसमें आपको एक और प्रॉपर्टी डालना होता है, वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो आप कर दो ऑटो, ठीक है। अब क्या होगा, जितना भी कंटेंट आपका ओवरफ्लो कर रहा है सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा और एक स्क्रॉलिंग फीचर आ जाएगा। देखो आया। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस पे काम करते हो। अब रही बात लाइन हाइट का। लाइन हाइट जो मैं बोल रहा था वो ये है कहानी कि ये जो लाइन दिख रहा है सेंचुरीज बट ऑल्सो लीप इनटू, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, उसको कंसिडर करते हैं लाइन हाइट में, ठीक है। अब देखो लाइन हाइट मैं बढ़ा रहा हूं, लाइन हाइट इसको मैं कर दिया 2, ये वैल्यू 1 से लाइक 5 के बीच में ही मैक्सिमम रखते हैं, उतना ही में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लाइन हाइट का ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा। हमेशा प्रैक्टिस ये किया जाता है कि लाइन हाइट का वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं दिया जाए, ठीक है। तो लाइन हाइट में हमने 2 वैल्यू डाला है, अब उसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। सेव कर दिया है और अब रिफ्रेश करेंगे। देखो दोनों लाइन के बीच में, देखो हर एक लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा या नहीं बढ़ा, जो बताओ। हेलो, किसी को ये ऑब्जर्व हुआ या नहीं हुआ? आप मैसेज तो करो यार। नहीं समझ में आया? देखो लाइन हाइट में क्या होता है ना कि 2 लाइन के बीच का जो स्पेस होता है ना, डिफरेंस, उसको, ये जो स्पेस है बीच में अभी देखो बड़ा सा है, इसको मैं 1 कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये जितना पहले था उतना पे चला जाएगा। देखो दिख रहा है? तो बाय डिफॉल्ट ये लाइक ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, तो मार्जिन वगैरह के अलावा आपके पास ऑप्शन बचता है 1 पॉइंट, सपोज इसका मैं कर दे रहा हूं 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 गुना जितना भी है ना विड्थ, सॉरी डिस्टेंस, उससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। देखो हो गया। तो इस तरीके से ये पैरामीटर काम करता है। तो लाइन हाइट से 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस आपका बढ़ता है, मतलब सेम पैराग्राफ का। ऐसा नहीं कि लाइक अलग वाले में से, तो उसमें आपको 2 अलग पैराग्राफ है तो आपको वहां पे मार्जिन यूज करना पड़ेगा, बट विद इन द सेम पैराग्राफ आप चाहते हो कि 2 लाइन्स के बीच में स्पेस बढ़ जाए, तो ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन हाइट के बारे में। चलिए अब जो हम आगे थे पैडिंग वाला पार्ट पे थे, राइट। तो अब इसी पे पैडिंग का प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूं पैडिंग टॉप, ठीक है। तो पैडिंग टॉप मैंने डाला सपोज 10 पिक्सल का। अभी आप आउटपुट देख लो क्या है, ये जो लोरेम इम्सम स्टार्ट हुआ, ये ऊपर से ज्यादा स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो अगर आप नोटिस करो तो ये ऊपर से एकदम एग्जैक्ट टॉप से स्टार्ट हुआ सेलेक्ट होना, राइट। लाइन हाइट बड़ा है इसलिए ये इतना स्पेस दिख रहा है आपको। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखोगे ऊपर से 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। देखो अब जो सेलेक्ट हो रहा ऊपर रेड वाला जहां से स्टार्ट हुआ उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, वो 10 पिक्सल का गैप है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। देखो ये 10 पिक्सल का ऊपर में गैप आ गया, आया। तो ये पैडिंग टॉप हुआ। अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूं, अभी तो 10 पिक्सल है, उसका वैल्यू मैं बढ़ा करके 25 पिक्सल कर दे रहा हूं, सो दैट कि आप चेंजेस ऑब्जर्व कर पाओ। तो 25 पिक्सल हमने करा। अब देखो इसका
कहानी। देखो स्पेस बढ़ गया ऊपर से, तो ऊपर से ये अंदर की ओर स्पेस ले रहा है, ये दिस इज अ लिस्ट आइटम और इसके बीच का मार्जिन नहीं बढ़ा। अगर मार्जिन बढ़ाते तो ये दोनों के बीच का स्पेस बढ़ता, ये बॉक्स और ये लिस्ट आइटम के बीच का। जब पैडिंग डालते हैं तो बॉक्स के अंदर वाला कंटेंट के बीच में स्पेस आता है, लाइक अंदर के बाउंड्री और कंटेंट के बीच के चीजों को हम चेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से पैडिंग लेफ्ट सेट करते हैं। अब पैडिंग लेफ्ट हमने डाला 25 पिक्सल। अब देखना लेफ्ट साइड से एकदम सट करके टेक्स्ट आपका स्टार्ट हुआ है, एकदम लास्ट से, बिग फ्रॉम द बिगनिंग है। रिफ्रेश करा, देखो लेफ्ट साइड से ये स्पेस आ गया, राइट। अब उसी तरीके से हम बॉटम और टॉप पे भी डालते हैं, और बॉटम और टॉप पे आपको दिखे उसके लिए मैं पहले टेक्स्ट को छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। जितना टेक्स्ट अंदर आ जाए बॉक्स के अंदर उतना ही टेक्स्ट हम रख रहे हैं। अब क्या है, हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम। उसके बाद आप देखें ना क्या क्या चेंजेस आपको आता है। पैडिंग राइट हमने सेट करा 25 px, देखो राइट साइड से भी पैडिंग आ गया। बॉटम पे लाइक देखो अभी स्पेस बहुत कम है बुक और इसके बीच का, ठीक है। अब पैडिंग बॉटम सेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या स्पेस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। पैडिंग बॉटम हमने सेट कर दिया 25 px, रिफ्रेश करा, देखो बुक और उसके बीच का डिस्टेंस अब बढ़ गया होगा, देखो बढ़ गया बुक और लास्ट वाला पार्ट पे। तो ये था हमारा पैडिंग। इसी तरीके से ये चारों वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो सिंगल पैरामीटर में, वो है पैडिंग। जब आपका पूरे चारों साइड पे इक्वल डालना है तो ये आप सिंगल वैल्यू यूज कर लोगे। rather than writing 4 lines you can do this in single line, राइट। देखो सेम सेम चीजें हैं। अगर आपकी मर्जी है कि लेफ्ट राइट का थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, तो ये हो गया टॉप और बॉटम का। जैसे ही हमने कहा लेफ्ट और राइट पे थोड़ा ज्यादा पैडिंग चाहिए, अब आप देखना जो डिस्टेंस है लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट का वो बढ़ जाएगा। देखो क्या हुआ, अंदर की ओर पैडिंग, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है किसके कंपेरिजन में, ऊपर वाले के कंपेरिजन में, राइट। तो ये था आपका पैडिंग वाला में 2 वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से आप पैडिंग का 4 वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सॉरी राइट हो गया, राइट के बाद ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो आप इस तरीके से 4 वैल्यू भी पास कर सकते हो और आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि हमने वैल्यू चेंज नहीं करा। अब अगर आपकी मर्जी है कि ऊपर वाला में ज्यादा और थोड़ा ज्यादा रहता तो बेहतर रहता, आप इसको कर दो 45 px। अब देखना ऊपर से थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा, देखो मिल गया। तो इसमें में आपका ये सॉरी डायमेंशंस और पैडिंग दोनों काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कर्सर। आपने ऑब्जर्व करा हो कि जब भी लिंक के पास जाता है आपका कर्सर तो वो चेंज हो जाता है, एक हाथ वाला आइकन में कन्वर्ट हो जाता होगा, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, आप चाहते हो कि कोई बटन के ऊपर जाए या कोई लिंक के ऊपर जाए तो आपका कर्सर चेंज हो, तो वो आप कर्सर प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे से चेंज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी फिलहाल ये लिंक नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल कर्सर है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे इस बॉक्स के ऊपर आए तो ये कर्सर किसी और में चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा कर्सर बोल करके, और उसके बाद यहाँ पे कर सकता हूं मैं पॉइंटर। तो पॉइंटर में क्या होगा, ये पॉइंटर कर्सर बन जाएगा, देखो हाथ वाला कर्सर में कन्वर्ट हो गया कि जैसे ये लिंक है जबकि ये लिंक नहीं है, तो ये पॉइंटर से पॉइंटर बन गया। अब आप चाहते हो प्रोग्रेस वाला दिखाए कि लाइक घूमने वाला जो होता है ना सिंबल, उस तरीके का, तो आप इसको सेट कर दो प्रोग्रेस, तो आपका कर्सर प्रोग्रेस में शो करेगा। देख रहे हो कर्सर के साथ प्रोग्रेस वाला घूम रहा है गोल गोल। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो अपने कर्सर को। क्लियर है। ठीक है, तो ये था आपका कर्सर का प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टीज जो भी अलाउड होते हैं आप पीडीएफ में एक बार देख लेना, आपको पीडीएफ डाला हुआ है क्लासरूम में, ठीक है। अब जैसे ही नन करा तो देखो जैसे ही आप हवर करोगे उसके ऊपर तो आपका इस पर कोई कर्सर नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे ही बाहर आओगे तो कर्सर आएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे जगह पे होता है ना कि आपको कर्सर क्लिकेबल एरिया नहीं रखना है, तो आप उसके लिए ये चीज करते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं पॉइंटर करके सेट कर दे रहा हूं। चलिए, तो ये था हमारा कहानी पूरा कर्सर के बारे में कि लाइक कर्सर हम कैसे सेट करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, वो है आउटलाइन, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायमेंशंस पढ़ लिए हैं। तो आउटलाइन में क्या है कि जैसे आपका मार्जिन होता है ना, सॉरी बॉर्डर होता है ना, तो बॉर्डर में क्या था कि बॉर्डर आपका तब विजिबल जब 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 चाहो जब आप लगा सकते हो बॉर्डर का। आउटलाइन वाला चीज क्या है, वो सिमिलर है बॉर्डर की तरह ही, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप समझना। आउटलाइन जो है आपका स्पेस नहीं ऑक्युपाई करता, जबकि बॉर्डर आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब कैनवास पे वो स्पेस लेता है, ठीक है। और आउटलाइन आपका कैनवास के ऊपर होता है, जेड एक्सिस पे होता है ये, तो ये आपका स्पेस नहीं लेता है। दूसरा, आउटलाइंस जो है वो हमेशा रेक्टेंगल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आउटलाइन रेक्टेंगल में ही होगा, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आउटलाइन जो है वो लाइक चारों साइड पे होता है, आप इसको लाइक डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको मिलते हैं वो मिलता है आउटलाइन का विड्थ, कितना विड्थ होगा, जो आउटलाइन का स्टाइल लाइक कि लाइन का स्टाइल क्या होगा, आउटलाइन का कलर क्या होगा, और आउटलाइन प्रॉपर्टी में ये सारे प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो एक साथ, जैसे बॉर्डर में कर सकते थे, ठीक है। तो कैसे होगा आउटलाइन, अब इसी के ऊपर मैं आउटलाइन वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूं। तो पहला चीज है आउटलाइन विड्थ, ये मोस्टली यूज होता है आपका इनपुट फील्ड में। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे साइट पे कि जब आप इनपुट फिल आउट करने लगते हो तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है इनपुट बॉक्स के चारों साइड का, ठीक है। तो इसका मैंने सेट करा आउटलाइन विथ 3 पिक्सल। ये इसलिए कर रहा हूँ ना इतना बड़ा, सो दैट कि आपको दिखे सामने से। आउटलाइन स्टाइल मैं कर रहा हूँ सॉलिड, कि लाइक सॉलिड कलर में रहे, और आउटलाइन का जो कलर है वो मैं सेट कर रहा हूँ येलो, सो दैट कि आपको सामने से दिखे चीजें, ठीक है। देखो आ गया, ये है आउटलाइन का, सिंपल बॉर्डर की तरह ही होता है, बट ये जेड एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। और इसका यूज मोस्टली हम करते हैं इनपुट फील्ड्स वगैरह में, ये बताने के लिए कि आप लाइक किसी इनपुट फील्ड में टाइप कर रहे हो तो उसका कलर चेंज कर दो आउटलाइन में, जैसे ही वो उस पर से हटे तो वो कोई और कलर का कर दो। तो ये सारी चीज जब हम इनपुट फील्ड बनाएंगे ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे यूज में लेकर के आएंगे इसको, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ये चीज यूज में आता है, क्लियर है। इसके बाद जो कहानी है हमारा वो है आपका लाइक कि इसको सारे को एक साथ कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन तो ठीक है हमने अलग अलग सेट करा कि चलेगा, एक लाइन अगर हमें एक ही साथ सेट करना होता तो जैसे बॉर्डर में तीनों प्रॉपर्टीज हम लोग एक साथ सेट करते थे, अगर मेरी मर्जी है कि मैं सबको एक साथ सेट करूं तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको सेम तरीका है कि लाइक आउटलाइन प्रॉपर्टी में आप पहले बताते हो कि आउटलाइन का टाइप कैसा होगा, ठीक है। थिन होगा, लाइक कैसा होगा, कितना पिक्सल का होगा, जो चीज़। तो ये तीनों को रिप्लेस करने के लिए आप सिंगल लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो आप जैसे बॉर्डर में डिफाइन करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखोगे। जैसे विड्थ कितना होगा, सपोज मैं चाहता हूँ थिन आउटलाइन हो तो थिन लिख दिया, ये 1 पिक्सल का होगा, ठीक है। थिक में थोड़ा मोटा होता है, तो वो उस तरीके से आप चेंजेस कर करके देख लेना ऑप्शन में। अब मेरी मर्जी है कि ये डॉटेड हो, ठीक है, 3 ऑप्शन मिलता है, डैश्ड, डॉटेड और सॉलिड, जैसे हमें मिल रहा था बॉर्डर में, सिमिलर वे में यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और इसको अप्लाई करते हैं, देखो बहुत ही पतला सा दिख रहा होगा, ये आपको मे भी क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा यार, ठीक है, थीन है इसलिए। देखो मैं जूम कर रहा हूँ सो दैट कि आपको दिखे सामने से, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो छोटा छोटा पतला सा है, मैं इसको थिक कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको दिख जाए। चलो थिक कर दिया, अब आप चेंजेस देखो कि लाइक ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, देखो हो गया थिक आउटलाइन। तो आप इस तरीके से आउटलाइंस सेट कर सकते हो। सो आज का हमारा जो प्लान था वो खत्म हुआ, अब हमारे पास 2 दिन और हैं, उतने में हमारा CSS कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग jQuery और जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई होप कि आपको समझ में आए वो चीज़ें। सो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट डे।